in our DS events calendar seminar. I will request, please mute your mic. Only the speaker will be allowed for the screen sharing. Today, the topic is our seminar's topic is about the plagiarism. That is very important topic, and for the research students, it is very necessary to understand the prevalence and practices and intellectual property rights. I will hopeful this lecture will be very helpful for the our research students to conduct their research, to write their thesis, and to learn about the research policy and research understandings. Today, the speaker is Dr. Muhammad Arshad. He is serving as assistant professor in the Department of Education. And he will talk about 30 to 40 minutes on this topic. Then we have question answer session. Will take 4 to 5 questions. I am very hopeful that this talk will be very helpful for our research students. So the research students and the participants should learn this talk very carefully. This our all talk will be recorded and it will be uploaded on our DS YouTube channel. And now I am giving the mic to the speaker. Please, Dr. Muhammad Arshad, I am thankful for sparing your time. Please continue your talk. Thank you. Thank you, Dr. Sab. I'm here, Dr. Muhammad Arshad from Department of Education. I'm going to start a very important topic, plagiarism. Most of the time, we have already heard about this topic many times through many seminars, conferences. Today, I am going to discuss what is the situation in the universities, prevailing situation in the situation in the university के अंदर इस वक्त situation क्या है, prevalence क्या है, किस तरह से लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से इसके बारे में राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, और प्रैक्टिसेस क्या हैं, और कौन से वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको स्टूडेंट्स और टीचर्स और सब मिलके इसको मल प्रैक्टिसेस या उसको प्लेजर को दूर करने के डिफरेंट तरीके मेथड यूज करते हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स इंट्रोडक्शन. ये एक स्टडी है, ये एक एक्चुअली स्टडी है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पे हमने स्टडी की है कि यूनिवर्सिटीज में प्रेवेलिंग सिचुएशन क्या है और किस तरह से ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं इसकी. सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली प्लेजरिज्म है क्या. द टर्म प्लेजरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन प्लेजरस मीनिंग किडनैपर. ये एक वर्ड है जिससे जहां से हम इसको जहां से ये स्टार्ट हुआ. नाउ इट इज एन unacknowledged, uncited written discourse by an author who is neither the originator nor the legitimate real owner of. अब ऐसा सेंटेंस को दूसरा शख्स इस्तेमाल करे जो खुद तो उसका वो क्रिएटर नहीं है, खुद तो उसने ओरिजिनेट नहीं किया, बल्कि किसी दूसरे का वो सेंटेंस उठाता है, क्योंकि दूसरे शख्स का वो एक पैराग्राफ उठा लेता है या पूरा पेपर उठा लेता है और उसको अपने नाम से उसको ओन करता है, तो दैट इज वी कैन से दैट इज द नॉट द गुड प्रैक्टिस. Plagiarism is serious academic misconduct and a common topic in higher education. So to build a solid foundation for higher academic standard and best practices at university, aspects of plagiarism are reviewed to develop better management processes for reducing plagiarism. Background of this study. हम देखते हैं कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज में चूंकि ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो इसी सिचुएशन को हमने बैकग्राउंड बनाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस
को प्रैक्टिस में लाते हैं, डिफरेंट तरीके यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, जिससे वो डिसऑनेस्टी हम कह सकते हैं वो अख्तियार करते हैं इसके अपने थीसिस में, अपने पेपर्स में. Academic dishonesty among undergraduate and graduate level students has adverse influence on each of the higher education institution in any country which decline the key values at higher education institution. Plagiarism is a subset of academic dishonesty, which rapidly increased at postgraduate level research work. ये डिफरेंट रिसर्च स्टडीज हैं जिनको हमने रिव्यू किया है, जिन्होंने इस प्लेजरिज्म से रेलेवेंट बहुत सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, जिन्होंने रिसर्च कंडक्ट की है और डिफरेंट उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज और प्रेवेलिंग उस वक्त की प्रेवेलिंग सिचुएशन उसको बेस बना के उस पर काम किया. ये पेज भी इसी से रेलेवेंट है. इंटरनेशनल स्टडीज हैं और ये नेशनल स्टडीज हैं. ऑब्जेक्टिव्स हमने कुछ इसके यूं बनाए कि to explore the level of awareness of students about plagiarism, its policy and practice, find out the level of prevalence of the plagiarism postgraduate research, explore the reasons, indicators and measures. Very important point है ये कि reasons, indicators and measures to reduce plagiarism postgraduate research. Investigate the effectiveness of plagiarism policy to detect and minimum plagiarism in postgraduate level. रिसर्च मेथडोलॉजी में हमने जो सुपरवाइजर एंड स्कॉलर्स हैं इनको हमने बेस बनाया. This research envisions to explore the awareness of students and about plagiarism, plagiarism policy, practice, causes, indicators, measures, and tactics of plagiarism. This is done through the perceptions of the supervisors and the scholars from public and private sectors, universities of Punjab. For this purpose, both qualitative and quantitative research approaches and tools are separately employed, causing convergent mixed method research design. This is the exposure of the quantitative data collection analysis, qualitative data collection, compare the relate and interpretation. Population of जैसे as I have already discussed about it, that the population of the studies supervisors who are supervising MPhil students and PhD students, and also the postgraduate students are also the participant, MPhil students and PhD students. Sampling procedure. The respondents of the study were HEC approved supervisor and at least 3 from each department, 120 in total, and at least 10 postgraduate students from each department, 420 in total. Multi-stage sampling technique हमने use किया है. At the first stage, public and 4 private, 4 public and 4 private हमने use किया इसको. Studies हमने ली है. Randomly selected from the Punjab. 2 public and 2 private universities were selected from the central Punjab. 1 public and 1 private university from the southern Punjab. 4 universities were selected from the central Punjab due to the vast populated area, which have maximum number of universities as compared to southern universities. क्योंकि southern Punjab में universities कम है. These are the universities we have selected for this sample. We have conducted the research on these universities. इसमें कुछ private हैं, कुछ public हैं, इनको हम base बनाया. Or which the department we have selected is the English language and literature, chemistry, faculty of sciences, education and research, IR, faculty of social sciences, and business administration, IBA. Faculty of Management Science. We have selected 8 universities से हमने ये students लिए. At the third stage, through the purposive sampling technique from each sampled department, all the teachers and postgraduate students were selected.
Sample description in tabular form is presented here under. तो इसमें supervisors जहाँ से हमने क्वेश्चन फिलअप कराए, सुपरवाइजर इंटरव्यूज हमने किए, फिर हमने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन फिलअप कराए, फिर हमने स्टूडेंट्स से FGD सर्च ऑफ द टूल. The following research instruments were used for the present study. Questionnaires for the supervisor and students. Interview schedule from the supervisors containing 13 items. Focus group discussion. Guidelines for the students containing 13 items. Question for a supervisor and students. Separate question having same indicators were developed for the supervisor and students to examine their perception. Questions consist of two parts: demographic information and close-ended questions. Interview schedule for the supervisor. A semi-structured interview schedule is developed to explore the perception of supervisor regarding awareness of plagiarism policy, practices, causes, indicators, measures and tactics. इनसे relevant हमने ये जो points हैं कि जिससे हमने प्लेजरिज्म पॉलिसी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि हम नो हाउ कहाँ तक रखते हैं, प्लेजरिज्म की अवेयरनेस है, प्रैक्टिसेस कौन कौन सी चल रही है इस टाइम और काजेस उसके क्यों करते हैं, स्टूडेंट ऐसा क्यों करते हैं, इंडिकेटर्स, मेजर्स एंड टैक्टिक्स. इट कंसिस्ट थ्री पार्ट्स: डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन. कुछ हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन रखे उसके अंदर और कुछ हमने अनस्ट्रक्चर्ड. Focus group discussion में हमने the FGDs are developed to explore the perceptions of scholars about awareness of plagiarism policy, practices, causes, indicators, measures, and tactics. It's also consisted of three parts. इसमें भी ये three parts हैं. इसी तरह उसी demographic information, structured questions, unstructured questions. Then we have validated and made the reliable the such tools. The research instruments were developed through studying various related articles. ये तो हमने question जो है ना इसको हमने validation की इसकी data collection process में हमने खुद visits किए और वहाँ जाके हमने data collection किया. Researcher personally collected the data from the respondents. Agreement of the supervisor and the students had been taken before visiting them. सबसे पहले उनसे हमने उनकी consent ली ताकि वो हमें data सही तरीके से provide करें. Respondents were ensured that the information received from them will always be kept confidential and used for research purpose. ये ethical consideration हमने उनको discuss भी किया, उनको बताया भी. बाकी ये प्रोसेस इसमें है इसके डेटा कलेक्शन प्रोसेस में हमने लास्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वर कंडक्टेड फ्रॉम द सुपरवाइजर्स. द रिसर्चर कांटेक्ट द इन्फॉर्मेंट्स telephonically with reference to the supervisor and physically visited the sample university. The researcher met with the chairpersons of selected departments. The consent letter regarding data collection. ये वो process है जो complete हम data collection के लिए हम करते हैं. Then we have analyzed the data. Analysis of the data was consisted of two sections: qualitative data analysis and qualitative data analysis. Quantitative data were analyzed by using descriptive, percentage mean, as well as inferential statistic, dependent sample t-test. Data analysis techniques with the use of SPSS data. Finding of the studies. ये हमने ये क्वेश्चन की बेस पे जो हमारी फाइंडिंग्स हैं कि हमने टीचर से, सुपरवाइजर से और स्टूडेंट से कुछ इंफॉर्मेशन ली कि उस बेस पे हमने इनको जो हमने मर्ज करके जो मेन फाइंडिंग उसकी ये बनी. मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपरवाइजर, मोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने
67.3% ने ये परसीव किया कि स्टूडेंट्स को प्लेजरिज्म के बारे में नो हाउ थी, वो जानते थे प्लेजरिज्म क्या है, अवेयर थे, वेल अवेयर थे। 64.9% supervisor and post graduation were in the favor of that. Students were aware regarding university policy of plagiarism. हर एक HEC ने प्लेजरिज्म पॉलिसी दी है और हर यूनिवर्सिटी ने भी अपनी एक प्लेजरिज्म पॉलिसी बना रखी है और वहां तक स्टूडेंट्स तक टीचर्स तक हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बारे में एक क्वेश्चन था। The maximum number of supervisor and postgraduate students agreed that the students were aware about the practice regarding plagiarism policy. Then 60% supervisor and postgraduate students were in favor of students were aware regarding prevalent practice of plagiarism policy. ये वो क्वेश्चन बेस्ड पे जो फाइंडिंग थी वो है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजंस, इंडिकेटर्स, मेजर्स, ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं, इसमें से पूछ रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे इसकी डिटेल है इसके बाद में हम इंटरव्यू में ज्यादा इसको डिस्कस करेंगे। Reasons, indicators and measures to reduce plagiarism. The majority of supervisor and postgraduate students, 69.8%, agreed that the postgraduate students were aware about the reasons. कमेंट पर वो मोस्टली जो सुपरवाइजर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनको इस बात का इल्म था, वो इस बात पे एग्री करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं, प्लेजरिज्म क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, उसकी रीजंस क्या, उनके काजेस क्या, उसके बारे में नो हाउ रखते हैं। और इसी तरह प्लेजरिज्म के जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में भी अक्सरियत की राय थी कि स्टूडेंट्स को पता होता है। इस तरह ये अक्सरियत सुपरवाइजर पोस्ट ग्रेजुएट ये बात एग्री करते हैं कि प्लेजरिज्म को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेजर्स हैं, उसके बारे में नो हाउ रखते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनिवर्सिटी पॉलिसी, इस बात की भी ये सुपरवाइजर और पोस्ट ग्रेजुएट were agreed regarding effectiveness of university policy to detect plagiarism, कि अगर हम यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को जहां तक यूज कर रहे हैं तो उससे यूनिवर्सिटीज की जो पॉलिसीज हैं कि प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए वो कारआमद है, उसका इफेक्टिवनेस है, उसका इम्पैक्ट है। इस तरह सुपरवाइजर एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑथेंटिकेटेड दैट the students were aware about the role of plagiarism. It means कि ये जो बात हम कर रहे हैं इसका मीनिंग ये है कि यूनिवर्सिटी की जो सुपरवाइजर हैं और टीचर हैं ये ओवरऑल काम कर रहे हैं, मोस्टली जो अपने अपने तौर पे अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जब हम जाते हैं क्वालिटेटिव डेटाबेस पे, जब बराह रास्त हम क्वेश्चन करते हैं टीचर से और स्टूडेंट से, उस वक्त उनकी फाइंडिंग जो है, जब हम उसकी जजमेंट कर, उसके डिस्कशन और उसके स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के जरिए से हम उनसे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, तो देन द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी वर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ अवेयरनेस के बारे में। It reveals from the analysis of interviews with the supervisors that students, particularly those who are at thesis writing stage, are adequately aware of the concept and implication of plagiarism. ये वो बराह रास्त पॉइंट्स हैं जो हमें वहां पे कुछ कंफ्यूज लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल जो है अवेयर थे, उनको पता है। On the other hand, reasonable number of respondents narrate that the students are unaware of the real concept of plagiarism. अब प्लेजरिज्म के नाम से उनको पता है प्लेजरिज्म क्या है, इसको कुछ ना कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन उनकी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, शायद वो कुछ लोग सिमिलरिटी इंडेक्स को ही प्लेजरिज्म समझ लेते हैं, लेकिन आज जो रियल कॉन्सेप्ट है तो उसके बारे में उनको इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं, 100% नहीं थी या 80% नहीं थी या 70% नहीं थी, पूरी तरह वो अवेयर नहीं थे। Level of prevalence, students mostly copy and paste material from the original work of others without paraphrasing and in-text citations. ये पॉइंट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं।
And some of them, although paraphrase the content, but they do not acknowledge the actual. ये जो plagiarism का type है, ये इस तरह ये कुछ किसी हद तक चल रही है. They intentionally pick up whole thesis. कुछ शादो नादर केसेस में ऐसा हुआ, ज्यादा नहीं. Some part of literature view and introduction section from an online source and present it as their own work after making some change to avoid similarity index. The students who work in the field of physical sciences, when see their research findings inconsistent with their research objectives, they steal the findings of some other relevant study and incorporate them in as their original work. किसी ना किसी हद तक वो कॉपी करके अपने जो फाइंडिंग है उनको वो फाइंडिंग के तौर पर लिख लेते हैं और उसके शो करते हैं कि ये हमारी फाइंडिंग. Some students purchase thesis from photocopy shop. ये शादो नादर कोई ऐसा एक कदर का वाक्य. Reasons of plagiarism, ये कौन से क्यों plagiarism की जाती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्टूडेंट plagiarism क्यों plagiarism को क्यों अडॉप्ट करते हैं. Students commit plagiarism for getting degree in shorter period and take it as shortcut for the thesis completion. ये वो इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि स्टूडेंट काम नहीं करते, टाइम पे काम नहीं करते. जब टाइम लिमिट कम रह जाती है तो वो स्टूडेंट कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह के शॉर्ट पीरियड में डिग्री हासिल कर लें और इसके लिए वो प्लेजरिज्म करने की कोशिश करें. लेजीनेस, poor reading habits and lack of interest in research. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. स्टूडेंट लेजीनेस की वजह से एक फैक्टर है उनका. Lack of reading and poor academic writing skills, lack of research skills, miserable research culture at university. बाज यूनिवर्सिटी में कल्चर अभी इतना डेवलप नहीं है तो उसकी रीजन भी है. Deficient awareness about the consequences of plagiarism. Plagiarism तो कर लेते हैं but they do not know much about the consequences of the plagiarism. Plagiarism के क्या consequences हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में अवेयर नहीं है, ज्यादा अवेयर नहीं है. ये consequences plagiarism के अगर consequences, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर consequences का पता होगा स्टूडेंट को, टीचर्स को पूरी तरह वेल अवेयर होंगे तो वो उसकी वजह से plagiarism कम करेंगे. Existence of paper mills, बहुत ज्यादा बार वहां से मिल जाती हैं, मटेरियल मिल जाती है, फोटोकॉपी और बार उसको प्रिंट लेते हैं, प्रिंट लेके वहीं से आप मटेरियल लेते हैं और उसको कॉपी करते हैं. फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वो गलती कोशिश उनकी ज़हन में होता है कि ऐसा ना हो कि हम लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए वो कॉपी कर लेते हैं. स्लगिश एटीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ द सुपरवाइजर एंड द स्टूडेंट्स. Due to job obligations, students give less time to research and get involved in plagiarism. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनके पास टाइम नहीं होता जॉब से निकलने के लिए और फिर वो ये काम करते हैं. Indicators of plagiarism. Indicators of plagiarism कैसे पता चलेगा कि ये these are very important points for teachers as well as students. टीचर्स के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें कैसा पता चलेगा प्लेजरिज्म इसकी मौजूद है. चंद पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे. इंडिकेटर्स ऑफ प्लेजरिज्म हाईलाइटेड बाय सुपरवाइजर आर एज, जो सुपरवाइजर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं वो ये हैं. फर्स्ट पॉइंट, मिसमैच, द मिसमैच बिटवीन स्टूडेंट्स एक्चुअल राइटिंग स्किल एंड द क्वालिटी ऑफ देयर थीसिस. अब स्टूडेंट्स अगर खुद लिखता है पैराग्राफ कहीं पे तो उसकी राइटिंग स्किल, राइटिंग एबिलिटी पता चलता है कि ये उसकी राइटिंग एबिलिटी है और उसका लेवल ऑफ एबिलिटी क्या है. और बाकी थीसिस में जो एबिलिटी उसकी राइटिंग स्किल है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है. उसमें वर्ड्स का यूज, उसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो सकती है और उसमें ग्रामेटिकली जो मिस्टेक आ सकती हैं. तो इस तरह जो एक अच्छा स्किल्ड पर्सन है उसकी लिखने का तरीका और दूसरे का मोस्टली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अनएबल टू प्रेजेंट देयर वर्क. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं अपने वर्क को, काम तो पॉसिबल किया हो उन्होंने, काम अगर किया हुआ भी है लेकिन उसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. दे हैव नॉट सच स्किल. यूज ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी.
साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी बहुत सारी ऐसी होती है जिनको यूज करते हैं, लेकिन पॉसिबल है उन साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी उनको प्रॉपर्ली यूज ना हुआ हो। जब प्रॉपर्ली यूज नहीं होता तो पता चल जाता है कि ये देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम प्रॉब्लम। अनप्रिडिक्टेड मैच्योर और पुअर राइटिंग, ऐसी राइटिंग जो मैच्योर नहीं है, पुअर राइटिंग हम उसको कह सकते हैं। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इक्वेशंस एंड कोटेशंस, फ्रीक्वेंट यूज बहुत ज्यादा हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसको उसकी जो थीसिस के जो रैशनल के साथ है मैचिंग नहीं चल रही होती। लैक ऑफ सीक्वेंस अमंग आइडियाज इन द manuscript and unnecessary detail of the content। तो डिटेल तो कंटेंट दिए जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अंदर सीक्वेंस नहीं है, आइडियाज के अंदर सीक्वेंस नहीं है। एक पैरा में और बात है, दूसरे पैराग्राफ में और बात है, तो कंसिस्टेंटली नहीं है, ग्रेजुअली डिस्कशन नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन। हम लिंक, उनके अंदर लिंक की कमी है कि हम कह सकते हैं कि ये बात वहां से पता चल जाता है कि ये एक्स की बात अपनी है और ये यहाँ से प्लेजराइज है। मल्टीप्लिसिटी, inconsistency in formatting of thesis. The students do not even remove bullets, numbers, commas, or captions of tables. They even do not change style of reference. ये भी इसकी वजह से भी इशू आता है। History of students in terms of their working attitude. तो working attitude में भी इशू होता है। वर्किंग एटीट्यूड जो है हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट खुद तो काम नहीं कर रहा, पता चल जाता है कि कभी कभी आता है, कभी कभी काम करता है, लेकिन इसका काम इसने इतना अच्छा लेके आया, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन दिस सिचुएशन। मेजर टू रिड्यूस प्लेजर, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हम डिस्कस आमतौर पे नहीं करते ताकि स्टूडेंट इसको यूज ना करें। It is found that maximum number of supervisors recommend some tangible steps to prevent plagiarism in students' research work. तो सबसे पहले they say that workshops, seminars, orientation session, ताकि हम स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा नो हो दे सके। Supervisors should highlight consequences of plagiarism and educate the students about the difference between plagiarism and similarity index. Research culture in university should be, ये जनरल सी बातें हैं, कोई supervisor should take this strict actions against students who involve in the plagiarism. Frequent meetings with supervisor and students are needed. Access of login accounts after needed for both the supervisor. Effectiveness of the policy, इसमें ये गया, अगर हमने यूनिवर्सिटी प्लेजियरिज्म पॉलिसी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्लेजियरिज्म, some of the respondents state that university plagiarism policy neither effective, कुछ ने कहा कि वो उसकी इफेक्टिवनेस इसलिए नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी की प्लेजियरिज्म पॉलिसी में इशू नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम। However, it is interesting to mention that both the supervisor students are not aware of the यूनिवर्सिटी प्लेजियरिज्म। बहुत सारे और अक्सरियत को ये नहीं पता कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी प्लेजियरिज्म पॉलिसी होती है। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है कि प्लेजियरिज्म एचईसी की प्लेजियरिज्म पॉलिसी है, जो अपने प्लेजियरिज्म पॉलिसी हर यूनिवर्सिटी ने अपनी अडॉप्ट कर रखी होती है, तो उसके बारे में ज्यादा नो हाउ नहीं है। टर्निटन, रूल ऑफ टर्निटन, टर्निटन अब जो सॉफ्टवेयर है सिमिलैरिटी इंडेक्स चेक करने के लिए उसका एक पॉजिटिव रोल है। उससे बहरहाल ये बहुत सारे जो प्लेजियरिज्म को चेक नहीं करता, सिमिलैरिटी इंडेक्स को चेक करता है। इट फाइंड्स सिमिलैरिटी इंडेक्स ऑफ द कंटेंट एंड इट कैन कैप्चर 3 consecutive वर्ड्स लाइक, तो 3 consecutive वर्ड या जैसे जो हम उसको फीड करें, जो पॉलिसी बना के जो इंस्ट्रक्शन दे उसके मुताबिक वो सिमिलैरिटी इंडेक्स चेक करता है। इट हाईलाइट्स टर्मिनोलॉजी, इक्वेशन, कोटेशन, हेडिंग्स, prepositions and numbers of the table. It can not detect plagiarism of the unpublished work, वो तो चूंकि उस पे मटेरियल नहीं होता इसलिए उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। If someone adds content and gives reference of a person, the software cannot identify
if it is correctly referenced and cited. तो अगर करेक्टली उसको रेफरेंस किया जाए तो फिर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. It does not detect feelings, thoughts, and ideas of the others. If someone publishes their work and reuses it in another work, the software reflects it as plagiarized work. ये इशू है. तो ये तो फिर जो हैं एक्सपर्ट्स है उन्होंने देखना है अगर ये काम इसका अपना है तो उसको कैसे हैंडल करना है. If scholar's work has been left somewhere online by mistake, it will be highlighted. इसको तो इसकी फिर एहतियात करनी पड़ेगी. अब मल प्रैक्टिसेस बाय स्कॉलर्स, ये वो पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं या स्कॉलर्स करते हैं और नहीं करना चाहिए, और ये इंतहाई खतरनाक है हमारी राइटिंग्स के लिए. In order to reduce similarity index in their research work, the students often use synonyms, habitually rephrase the text. आमतौर पे ये मोस्टली ये देखने में आया कि ये synonyms वर्ड्स को चेंज कर देते हैं और ये रिफ्रेज कर देते हैं, और ये इंतहाई बड़ी ये डिसऑनेस्टी है. इसको हमने रोकना है. They as well use quotation marks. लफ्जों के दरमियान में कोटेशन मार्क के दरमियान में लगा देते हैं, कॉलन लगाते हैं, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, एब्रिविएशंस, डबल स्पेस, स्क्रीनशॉट्स एंड ब्रैकेट्स. इन लफ्जों को इन जो पंक्चुएशंस को जब हम वहां पे लगाते हैं या इन जो मल प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं तो उससे सिमिलैरिटी इंडेक्स तो मिनिमम शो हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से और एक और भी इनको यूज करने के बाद कलरलेस कर देते हैं. ये शायद यहाँ पे बात नहीं लिख सके हम. कलरलेस कर देते हैं, कॉलन लगाते हैं और उसको कलरलेस लगाते हैं, वो नजर नहीं आता. सेमी कॉलन लगाते हैं, कलरलेस लगा देते हैं, कॉमास लगाते हैं, कलरलेस लगा देते हैं, कर देते हैं. तो इस तरह से ये इतनी बड़ी बैड हैबिट है. वी हैव टू नॉट ओनली रिड्यूस इट बल्कि मिनिमाइज इट, बल्कि आल्सो वी हैव टू इसको हमने खत्म करना है ताकि ये बिल्कुल ना हो. अगर यह जब प्रैक्टिस रहेगी तो हमारे राइटिंग्स में प्योरिटी नहीं आ सकती है. दे चेंज ग्रामेटिकली फ्लो एज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा. ये भी एक इशू है. इस तरह भी करते हैं. दे ट्रांसलेट द मटेरियल इंग्लिश टू अनदर. अब ये लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है to another language, for example French, and then translate it again into source language. और इससे जो ये कर तो लेते हैं, सिमिलरिटी इंडेक्स कम हो जाता है, लेकिन उससे होता क्या है कि वो सारी की सारी जो टेक्स्ट है वो मीनिंगलेस बन जाती है. उसके जो जितनी हम मेहनत कर रहे होते हैं वो उसकी सारी मेहनत जाया चली जाती है. दे आल्सो यूज गूगल ट्रांसलेटर. ये डिफरेंट हमारे ये सॉफ्टवेयर हैं, इसके जरिए से भी यूज करते हैं ट्रांसलेटर. स्पैमर and spinner software that shuffle the words को shuffle करते हैं. incorrect spelling, for example spellings of the quality is replaced with the quality. तो इस तरह से भी ये इशू करते हैं. in the content before generating the similarity index, पहले वो कर लेते हैं और जब similarity index चेक हो जाता है तो बाद में उसको वर्ड्स को करेक्ट कर दिया जाता है. एक दफा इनकरेक्ट करते हैं, बाद में करेक्ट. और हमें एज ए सुपरवाइजर इस पॉइंट्स को जब हम चेक करेंगे तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स जो जानबूझ के हम करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो इनको हमने रोकना होगा. और ये मल प्रैक्टिसेस इस टाइम चल रही हैं और मोस्टली ये अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग, ये फाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम कि पूरे पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटी में हमने रिसर्च की है तो वहां पे ये मल प्रैक्टिसेस चल रही हैं. और ये सारी बातें जो हैं ये सुपरवाइजर ने बताई हैं, ये स्कॉलर्स ने बताई हैं, और इस तरह से ये फाइंडिंग है. ये पंजाब की मोस्टली यूनिवर्सिटियों में ये सिचुएशन चल रही है. प्लेजरिज्म रिकमेंडेशन. So in this regard, it is recommended that the training, workshops, seminars, orientation session, ये तो जनरल रिकमेंडेशन है कि हमें बताना चाहिए, नो हो करनी चाहिए, देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, हमें खुद उस पर
अवेयरनेस ऑफ प्लेजरिज्म पॉलिसी। हमें बहुत सारे जो जिससे हमने पीछे हमारी फाइंडिंग है कि मोस्टली जो सुपरवाइजर और स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी की प्लेजरिज्म पॉलिसी के बारे में पता नहीं है। एचईसी के डॉक्यूमेंट मोस्टली यूनिवर्सिटी की प्लेजरिज्म पॉलिसी हम उन्होंने खुद अडॉप्ट कर रखी है, तो उनके बारे में अपनी पॉलिसी के बारे में उनको पता नहीं था ज्यादा। यूज ऑफ प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर, तो इसके जरिए से भी हम कोई यूज कर सकते हैं। अगर ये यूज करें जहां से पता चले कि इबारत किसकी कॉपी है, किसकी मैच कर रही है, सिमिलरिटी इंडेक्स की बजाय उसका जो आइडिया है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको अगर मैं उसको डिटेक्ट करता है तो फिर ऐसे प्लेजरिज्म को हम यूज कर सकते हैं। हाउ दे प्रिवेंट देयर वर्क फ्रॉम प्लेजरिज्म, ये बात हमने इनको सेमिनार्स में और इंटर सेशन में वर्कशॉप में बतानी होगी। हाईलाइटेड प्लेजरिज्म पेनल्टीज, ये बताना होगा कि प्लेजरिज्म अगर करेंगे तो उसका जो उसकी पेनल्टीज क्या है। अगर पेनल्टीज का पता होगा तो स्टूडेंट नहीं करेंगे। अगर पेनल्टीज का अगर जब तक पता नहीं होगा, मोस्टली को नहीं पता, मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स को भी और इस तरह बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज में पेनल्टीज का पता नहीं है। डिमेरिट्स ऑफ प्लेजरिज्म, इफेक्ट्स ऑफ प्लेजरिज्म ऑन देयर फ्यूचर, कि इसका प्लेजरिज्म के जो नुकसानात हैं वो क्या है और उनके अपने फ्यूचर पे प्लेजरिज्म का जो इफेक्ट है वो क्या है, क्या नुकसान हो सकता है, उनका फ्यूचर जाया हो सकता है, वो किसी जॉब के लिए नाअहल हो सकते हैं, या और भी बाकी जो डिफरेंट पेनल्टीज एचईसी ने रिकमेंड कर रखी हैं, उनको अगर बताएंगे तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ये कम से कम हो सके। स्टूडेंट्स मे बी प्रिपेयर्ड एंड सेंसिटाइज्ड दैट प्लेजरिज्म क्राइम, अनएथिकल एंड डिसऑनेस्टी। ये स्टूडेंट्स को हमें बताना होगा कि ये क्राइम है, अनएथिकल है और ये डिसऑनेस्टी है। ये नहीं है कि ये हमने पैराफ्रेज कर दिया तो हमारा ये काम कम हो गया, कंप्लीट हो गया, या इसके पैराफ्रेज करने से या रिफ्रेज करने से हमारी जो अप्रूवल होगी, साइन हमने किसी तरीके से करवा लिए तो करवाने के बाद हमारी डिग्री अप्रूव होगी, लेकिन डिग्री होने के बाद भी दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। Creative writing skills of students, particularly in English, are needed to be promoted since BS and master। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स को अपनी राइटिंग में, अपने वर्ड्स में अपना जो कुछ लिखना चाहता है वो लिखना नहीं आता, तो इसके लिए हमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल हमें चाहिए कि हम उन्हें इम्प्रूव करें। There should be regular check and balance on the students' work by the supervisor। ये तो प्रॉपरली करते ही होंगे, लेकिन इसमें इशू है बहरहाल। Supervisors should guide the students to rewrite the content in their own words. In addition, plagiarism should be checked in assignments of the students. Teachers should arrange the classroom activities regarding plagiarism. Plagiarism should be checked at departmental level. It is recommended that teachers should give awareness to the student during coursework at BS, Master and MPhil level regarding उस लेवल से ये नो हाउ लेके आएंगे तो आगे इनको कम से कम इसकी सेंस भी होगी, इसकी पेनल्टीज को भी पता होगा और इसके आफ्टर इफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस जो इससे जो नुकसान हो सकते हैं उसका पता होगा, तो स्टार्ट से ही अपना एक इमेज, एक टारगेट लेके आएगा। Supervisors should be competent, honest, and keep regular check and balance on scholars' research work to stop them committing plagiarism. Teachers should check plagiarism in assignment of the students. Furthermore, और ये हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे इदारे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च डायरेक्टरेट ऑफ एडवांस स्टडीज है, डैश, जिसके अंडर ये हमारा लेक्चर हो रहा है। और इसके बाद और एक है नीड्स टू एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ देयर वर्क as to deal with the plagiarism. QEC, quality enhancement, set took steps to prevent plagiarism. HEC circulation regarding plagiarism. जो भी circulations आती रहती हैं उसके बारे में नो हाउ देना चाहिए। Supervisors keep the regular check and balance on the students research work. ये चूंकि ये लेक्चर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट भी रहता है, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा
will I move to, can I move to the second part, intellectual property, or go to And question answer? that's how we will take the question answer, and Yes. in the later on, I will arrange a further one talk, your talk on the Okay. property. Oh, okay. Welcome, Uh, welcome, sir. It was a very wonderful talk. First, we have a question answer. If any student have a question, please raise your hand or write in the chat room, and then the admin will unmute you. Any student have any understanding, any issue in the understanding of plagiarism? You know, in the orientation session, we also discussed about the plagiarism issue. In our DS new catalog, we clarified the plagiarism policy and even punishments. Uh, Even you have graduated many years before, but later on, if you did anything wrong, your thesis can be catched, and then you will be held responsible to withdraw your degree. You have some punishments, and your supervisor also be in hot water. So please careful writing your synopsis, writing your thesis. Should not take a copy from any other person's idea, research work. That's up. There is one question from one student: how to choose the variable in the past articles to remove the plagiarism? Again, question, sir. There's one question from the student: how to choose the variables in the past articles to remove the plagiarism? पास्ट आर्टिकल्स जो उसके अपने पब्लिश हो चुके हैं या किसी और के पब्लिश हो चुके हैं? आई थिंक वो रेलेवेंट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जहां से वो रिव्यू करते हैं कि अगर उधर से वेरिएबल लेते हैं पास्ट आर्टिकल से, तो वो कैसे प्लेजरिज्म, वो काउंट फॉल नहीं होगा प्लेजरिज्म में, या उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? वेरिएबल्स क्या, मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहे हैं कि वेरिएबल का वर्ड जो लफ्ज है, हमें कोई टेक्निकल वर्ड हम अपने रिसर्च में यूज करते हैं, तो उसमें जो मेजर वेरिएबल्स हैं, तो वो तो उसका तो सिमिलैरिटी इंडेक्स आएगा, क्योंकि सेम वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, उसको चेंज करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो वर्ड्स तो वही रहेंगे। इसलिए HEC ने इजाजत दे रखी है कि 19% तक जो वर्ड्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो उसकी इजाजत इसलिए दे रखी थी, इतनी सिमिलरिटी इंडेक्स जो है उसमें इसलिए इजाजत है। तो पास्ट जो पेपर हैं या मौजूदा पेपर्स हैं, उसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को तो चेंज नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल तो क्वेश्चन यही है, उसका ये है कि हम वेरिएबल्स को ये वेरिएबल को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा चीज कोई मेथोडोलॉजी या कोई चीज आप किसी की कोट कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको साइट करें रेलेवेंट पर्सन को। जी सर, उसको साइड करना। दूसरी बात सर ये है कि अगर प्लेजिज्म हम आपको 19% की इजाजत नहीं दे रहे, प्लेजिज्म तो 0.001% भी इजाजत नहीं होती। ये तो सिमिलैरिटी इंडेक्स जो उसकी टर्म्स और टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इजाजत है, ताकि इतना मटेरियल अगर सिमिलरिटी इंडेक्स में आ भी जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन प्लेजरिज्म तो 0% की इजाजत भी नहीं, जीरो मतलब टॉलरिज्म है, तो उस पे तो हम 0.00 समथिंग कुछ भी उसको इजाजत नहीं दे सकते। सिमिलरिटी इंडेक्स इसलिए होते हैं कि वेरिएबल क्योंकि उसको सिमिलर आ रहे होते हैं, वर्ड्स वही होते हैं, टेक्निकल टर्म्स वही होती हैं, फार्मूलाज वही होते हैं, तो इसलिए उसको इजाजत होती है। Any other question from the participants? I think there is no question, but in near future, I will try to arrange a talk from the speaker from HEC or some other organization about the plagiarism policy.
and we will gather the postgraduate students in the auditorium about this talk, and we will try to give the know-how to deal with the plagiarism and similarity index. What is difference between the similarity index and the plagiarism? How we can learn from other resources, but writing their reference and can use their reference. Should not claim their things with our names. That is the biggest issue in our plagiarism, that we call that plagiarism. Dr. Saab, thank you very much for sparing your valuable time, and thank you the participants to listen us, and hopefully we will meet in the next seminar. Next week we will all busy in the silver jubilee celebrations. Then every faculty member and every student should participate in their activities regarding research, curriculum, extracurriculum activities. All the postgraduate students, I already requested the research coordinators, please prepare their posters and should place in their department. Should place in their departments on the Friday, 26th of the November. So that was will be on the alumni. Alumni peoples will visit our each departments, and the best one poster will be placed in the agriculture seminar room poster gallery from each department. I will request the coordinators and chairpersons, please prepare for this, and we will arrange some kind of scientific gala about this. Thank you, the Dr. Arshad, for sparing your valuable time today about this very wonderful, informative talk for the students and for the faculty members. We'll meet next time in the seminar. Bye. Allah Hafiz.